My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Pilochi, Jaipur. In previous lesson, we have learned several stanzas of the poem Kubla Khan composed by Samuel Taylor Coleridge. Today we will learn the next stanza of this poem. First, I will read the stanzas of this poem, and after that I will explain it in English and Hindi simultaneously. So, dear students, listen the stanza of this poem carefully. The shadows of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. Now listen the explanation of these lines. These lines are from the poem Kubla Khan written by S.T. Coleridge. In these lines, Kubla Khan ordered a pleasure dome to be built in Xanadu on the bank of the river Alf. The river Alf had its origin in the fountain which gushed out of the earth with a great force. Alf had its origin in the fountain which gushed out of the earth with a great force. It flowed through forests and valleys for 5 miles, passed through the caverns measureless to man, and then joined fearless ocean with a great noise. These lines gives These lines gives a beautiful description of the sun shining brightly on it outside. It was a construction of rare design and a wonderful triumph of architecture. It combined in itself a summer and a winter palace. The shadows of the palace fell into the river and moved along with the waves. The waves of the river carried in them the mixed music of the gushing and gurgling sound heard inside the caves. Now, student, listen the explanation of these lines in Hindi. प्रस्तुत पंक्तियां एस.टी. कॉलरिज के एक ड्रीम पॉइंट जिसे हम स्वप्निल काव्य का जो भाग है, हिस्सा है, फ्रेगमेंट है, कुबला खान, उसमें से ली गई है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब कुबला खान ने आदेश दिया एक आनंद भवन निर्माण करने का जेनाडू के अंदर, जो कि पवित्र नदी आल्फ के किनारे पर स्थित है, और आल्फ नदी एक ऐसे फवारे से निकलती है जो कि धरती से तीव्र प्रभाव के साथ फूटता हुआ दिखाई देता है। गशिंग आउट ऑफ द अर्थ विद ए ग्रेट फोर्स, तीव्र प्रभाव के साथ गशिंग आउट होता है, फूटता हुआ दिखाई देता है। यह जंगलों और घाटियों में 5 मील तक बहती हुई निकलती है। Flowed through forest and valleys for 5 miles and passed through
द कैवर्न्स, और असंख्य गुफाओं को पार करके, ऐसी गुफाएं जो कि निस्संदेह रूप से आदमी के द्वारा मापन योग्य नहीं है, जिनकी था नहीं ली जा सकती, ऐसी गुफाओं से होकर के जा करके, और फिर इसके बाद निर्जीव समुद्र के अंदर एक भारी शोर के साथ मिल जाती है। ये प्रस्तुत पंक्तियां उस स्वप्निल आनंद महल का एक बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन करती है। आनंद भवन का जो सुंदर और असाधारण चित्र इन पंक्तियों में जो प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही सुंदर है। यह एक बर्फीली गुफा जैसी प्रतीत होती है। आइस केव, लास्ट में दिया है ना, द केव्स ऑफ आइस, बर्फीली गुफाओं जैसे प्रतीत होती है, जिसने सूर्य का प्रकाश ओढ़ रखा है। ब्राइटली सन शाइनिंग ब्राइटली ऑन इट्स आउटसाइड, बाहरों चारों तरफ से जो चमकीला सूर्य का प्रकाश है वो इसके ऊपर है, यानी इस सूर्य का प्रकाश ओढ़ रखा है और बाहर से अत्यधिक चमकीली प्रतीत होती है। इसकी बनावट दुर्लभ थी, रेयर, और वास्तुकला की मानो एक महान जीत की हो, ट्रायम्फ ऑफ आर्किटेक्चर, महान जीत थी। शीत और ग्रीष्म महल दोनों मानो इसके अंदर एकाकार हो उठे हों। इट कंबाइंड इन इटसेल्फ समर एंड ए विंटर पैलेस, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ही महल इसके अंदर एकाकार हुए हो, ऐसे प्रतीत होता है। आरामगाह की जो परछाई है, शेडो है, वो नदी के पानी में पड़कर लहरों के साथ नाचती सी प्रतीत होती है। The shadow of the palace fell into the river and moved along with the waves. लहरों के साथ जब मूव करती है, नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, तो नदी की लहरें गरगर करती हुई सुनाई पड़ रही थी। The waves of the river carried in them mixed music, एक संगीत में जो उसमें एक मिश्रित संगीत है, गशिंग एंड गरगलिंग, गरगर करता हुआ और शोर करता हुआ, तेजी से, तीव्रता का जो स्वर है वो इस गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर, जो बर्फीली गुफाएं हैं उनके अंदर सुना जा रहा था, सुनाई देता था। प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट को, जो पोएम कुबला खां का है, उसके इस पार्ट को तुमने हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः सुना और मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में इसका अगला वाला हिस्सा हम लेकर फिर से तुम्हारे सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।